Hello, good evening, everyone. So, friends, let me welcome you all to Divine Institute. And today we shall be discussing about introductory lecture on constitutional law. But before do I discuss the significance of constitutional law in judiciary, let me tell you that we must answer two important questions when we discuss constitutional law. Number one, what is constitutional law? And number two, what is its significance in the judicial service exam? So these two questions are paramount before we undertake an elaborative study of constitutional law. So let me answer the first question first. The question is, what is constitutional law? Right? So अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी देश में दो किस्म के कानून बनते हैं और दो किस्म के कानून होते हैं, ठीक है, लेट मी बी बाइलिंगुअल हियर. एक कॉन्स्टिट्यूशन जो देश को चलाता है, ठीक है, और दूसरा कानून जो लोगों को चलाता है, इन द सेंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन which regulates the relationship among the people or between the citizens, right? The law which regulate the relationship of the state with the students, or for that matter which enables the state to function properly, that category of law is called as constitutional law, whereas the latter category of law is called as private law. So in that sense हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में दो किस्म के, अगर हम लीगल लैंग्वेज में उसको डिकोड करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में दो किस्म के कानून होते हैं. एक को पब्लिक लॉ कहा जाता है और दूसरे को प्राइवेट लॉ कहा जाता है. पब्लिक लॉ इज द लॉ व्हिच रेगुलेट्स द स्टेट. देश कैसे चलाना है, देश के लिए कोई कानून होना चाहिए, राइट? और कहते हैं कि इससे पहले कि देश या स्टेट, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में एक्चुअली स्टेट कहते हैं, इससे पहले कि स्टेट लॉज बनाए लोगों को रेगुलेट करने के लिए, जो उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, एक सिविलाइज्ड वे ऑफ एग्जिस्टेंस इंश्योर करने के लिए, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी अ लॉ फॉर द स्टेट इटसेल्फ. ठीक है, राइट? इससे पहले कहने का मतलब कि स्टेट लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाए, इससे पहले, राइट, स्टेट लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाए, राइट, इससे पहले ये जरूरी है कि स्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए. ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस यहां से हम जज कर सकते हैं कि स्टेट जो है, इट इज अ वेरी पावरफुल एंटिटी, बिकॉज द पीपल हु गवर्न द स्टेट, जब जो स्टेट को चलाते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में गवर्नमेंट कहते हैं, राइट, they exercise or wield enormous powers, right? And sometimes, right, if this power is not checked or circumscribed, then it can be a threat to individual freedom and liberty, right? In order to check the powers of the state, as you may be aware about the famous maxim that power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, right? If there is unchecked power, then it is liable to be misused, right? And whenever there is a misuse of power, it is very likely that there is danger to individual liberty and freedom, okay, and many other casualties that can be expected as a fallout of unchecked power. In order to ensure that state could run in an organized manner, right, it does not misuse its power, जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या उसका मिसयूज कर सकते हैं, हर देश एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स द लॉ ऑफ द स्टेट, राइट, जो ये कहता है कि स्टेट वही कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है. इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो स्टेट के लिए बाउंड्रीज या पैरामीटर तय करता है कि दिस इज द लक्ष्मण रेखा विद इन विच यू आर सपोज टू फंक्शन. इन एनी केस यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसग्रेस योर limits, your boundaries, right? If you do that, then
it amounts to a glaring violation of the constitution, and then you have to answer for your conduct, alleged conduct so called, ठीक है, in a court of law. ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश में जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट, सुप्रीम कोर्ट को यही पावर दी जाती है, यही जुडिशरी में हमने इसी सिग्निफिकेंस भी समझनी है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट acts as the custodian of the constitution, that it protects the constitution. It not only interprets the constitution but it protects the constitution, and that's why, right, supreme court को custodian of the constitution भी कहा जाता है. ठीक है, राइट, एक लैटिन टर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सेंटिनल क्विवी. It is always on the watch. Sentinel quivi means always on the watch. It's a Latin. On the watch. इसका मतलब ये होता है कि it is always on the watch. Right? It acts like a watching tower. तो watching tower का जो रोल जो सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म करती है, चाहे हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करें, चाहे वो इंडिया है और फॉर दैट मैटर यूएसए है, राइट, जो कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में गिने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देयर ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज टुडे एक्सेप्ट 2 कंट्रीज. ठीक है, जो कि जनरली आपको ये लीगल जीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे 2 देश हैं, ठीक है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिटर्न नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है. एंड देयर आर ओनली 2 क्लासिक एग्जांपल्स एज ऑन डेट. नंबर 1, यहाँ भी लड़ाई छिड़ी हुई है जिसको हम इजराइल कहते हैं, पर इजराइल में भी एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, जो कि उनका जो टोरा, रिलीजियस ज्यूज की जो रिलीजियस बुक है, उसके बेसिस पे उनकी गवर्नेंस कंडक्ट होती है, उनकी कंट्री गवर्न होती है. ठीक है, टोरा कहते हैं, राइट. और यूके तो क्लासिक एग्जांपल है ही, वहां कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है. ठीक है, इन द सेंस दैट कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट दैट इज नॉट कोडिफाइड somewhere in a single substantive source. ठीक है, यहां से उनके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की स्टडी की जा सके. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशंस, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स, राइट, जुडिशियल डिसीजन जिसको प्रेसिडेंट्स कहते हैं. ठीक है, एंड कस्टम्स एंड यूसेजेस पे उनका देश चलता है, जो कि कॉन्क्रीटाइज हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ बट नॉट कोडिफाइड एनीवे. सो कहने का मतलब यह है कि हमने स्टोरी कहां से शुरू की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है. तो उसी का हम आंसर कर रहे थे कि किसी भी देश में 2 किस्म के कानून बनते हैं. एक जो कि देश को चलाता है, देश के लिए कानून है या स्टेट का कानून है, और एक जो कानून लोगों के रिलेशंस या कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए बनते हैं, सो दैट एक सिविलाइज्ड वे ऑफ एग्जिस्टेंस इंश्योर हो सके. द law of the former category legally speaking is called as public law. ठीक है, उसको पब्लिक लॉ कहते हैं. ठीक है, एंड द लॉज ऑफ द लैटर कैटेगरी उनको प्राइवेट लॉ कहते हैं. ठीक है, राइट. पब्लिक लॉ की एग्जांपल आप ले सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. देन राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, right. Then we have public international law, which is a law of the nations. ठीक है, उसको हम वर्ल्ड लॉ भी कहते हैं, ग्लोबल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि वो देशों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया है. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रीटीज. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ज्यूरिस्टिक ओपिनियंस. ठीक है, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी आ गया. These are some of the best examples of public law, जिसमें constitutional law is the supreme. ठीक है, in the sense that it is the most respected law that every country writes, right. That's a different matter कि वो उसको एक संविधान सभा के द्वारा लिखा जाता है या उसको डायरेक्टली थ्रू कन्वेंशंस लिखा जाता है. जैसे यूएसए में कन्वेंशंस हुई थी, इसको फिलाडेल्फिया कन्वेंशन इज द मोस्ट पॉपुलर कन्वेंशन which had happened in US history, which ultimately drafted the
US कॉन्स्टिट्यूशन। Whereas इंडिया में हमने इसको इनडायरेक्टली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लिखा, right? That was set up way back on 9 December 1946, right? तो ये पब्लिक लॉ जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो प्राइवेट लॉ है उसकी मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल बताया थी कि प्राइवेट लॉ जो कि स्टेट बनाएगी, स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लॉ बनाता है जिसका नाम है पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट बनाती है, जब स्टेट लेजिस्लेचर, हमारा देश एक फेडरल देश है, यहाँ स्टेट की अपनी अपनी डोमेन में पावर्स हैं लॉ बनाने की, स्टेट लिस्ट उसको हम कहते हैं। अदरवाइज पार्लियामेंट इज द सॉवरेन इंस्टीट्यूशन जो कि कानून बनाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक या दूसरी कंडीशंस देश की चेंज होती हैं, वैसे ही लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल, ठीक है? बिकॉज the nature of crimes is changing almost every time, right? And the needs of the society are also changing, morals of the society are also changing, and therefore parliament takes an arduous task of framing the laws, right, in order to answer to the changing circumstances of the society, right? तो वो पब्लिक लॉ की एग्जांपल होगी। उसमें आप पब्लिक लॉ की एग्जांपल में आप ले सकते हो इंडियन पिनल कोड, जैसे हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है जो कि सीआरपीसी है, ठीक है, which is popularly referred to as the constitution of the accused। इंडियन पिनल कोड जो कि एक सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है जो कि क्राइम और उनके पनिशमेंट को डिफाइन करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस और उनके बीच में जो करार होते हैं, ठीक है, बिजनेस ट्रेड इंडस्ट्री जो कि एक स्पीसीज है मर्केंटाइल लॉ की, ठीक है। ये सारे प्राइवेट लॉ की एग्जांपल्स हैं। हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करें, पब्लिक लॉ की, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की डेफिनेशन हम सिंपली यहां से समझ के ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज दैट लॉ व्हिच regulates the behavior or conduct of the state. It draws the boundary lines within which, जिसको हम लक्ष्मण रेखा रेखा कह सकते हैं, within which state is supposed to function. It is not in any case supposed to transgress those boundaries. If it does that, हमने पहले बात कर लिया, then it amounts to violation of the constitution, right? Our Supreme Court will take a call on that and adjudge the action or any kind of omission on the part of the state institution as being unconstitutional. In fact, इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के 3 काम होते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। इट नंबर 1, एज वी ऑलरेडी नो दैट, कि जो स्टेट है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन जिसके कुछ फीचर्स होते हैं। वी आर नॉट सपोज टू गो इनटू दोस डिटेल, बट आपको इतना पता होना कि हर एक स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, बेसिक ऑर्गन्स। स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 organs. State is made up of 3 organs. Number 1, legislature. Number 2, executive. And number 3, judiciary. 3 organs के, हर स्टेट के यूनिवर्सल 3 organs हैं. And everyone of us is aware of the fact that legislature का काम कानून बनाना होता है, to enact laws and of course to amend the laws, जो पुराने laws outdated हो गए हैं, ठीक है, उनको amend करना, even repeal जो पुराने laws जो useless हो चुके हैं उनको repeal करने का काम भी legislature का होता है। laws बनाना, उनको amend करना, right, and उनको repeal करना if they have become totally redundant now, right? executive का काम यूनिवर्सल है, जो laws legislature बनाए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ग्राउंड लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करना। एंड दैट्स व्हाई एग्जीक्यूटिव का रोल ये होता है दैट इट एग्जीक्यूट्स द लॉज दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर। एंड ऑफ कोर्स जुडिशरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और फॉर दैट मैटर ऑर्गन ऑफ द स्टेट, जिसका काम लॉज की इंटरप्रिटेशन, एक तो है ही है ये काम करना, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की इंटरप्रिटेशन करने का काम भी तो जुडिशरी का है। दैट इज स्पेशली इट इज असाइन्ड टू द टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। बट एट द सेम टाइम, राइट, it interprets all the laws of the country whenever they are challenged on any ground whatsoever, okay? And it uses the base that is called as constitution in order to interpret and apply meaning to those laws, right?
उन लॉज को मीनिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल हु अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस। तो ये अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ये 3 आर्गुमेंट जो हमने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मेन पर्पस ही यही है, या कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस ही है, जो कि ये डिफाइन करता है कि लेजिस्लेचर के क्या पावर्स होंगी, जो हमने पहले बोला कि लॉज बनाने की पावर है, बट इन व्हाट एरियाज, क्या किस किस एरियाज में और कहां तक पावर हैज टू बी सर्कमस्क्राइब्ड, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही डिफाइन करता है कि लेजिस्लेचर की क्या पावर्स हैं, ठीक है, दैट इज टू मेक लॉज, दैट वी ऑलरेडी नो दैट, बट टू व्हाट एक्सटेंट, कहां तक लॉ बनाने की पावर है, ठीक है, राइट। सेकेंडली, लेजिस्लेचर को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कैसे उसको बनाया जाएगा, सिंपल टर्म्स में, ठीक है, इलेक्शन होगी, ठीक है, या नॉमिनेशन होगी, या कुछ ऐसे तरीके से। ऑफ कोर्स टुडे व्हेन आई यूज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसीज, तो नेचुरली लेजिस्लेचर को बनाने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इलेक्शन ही होगी, ठीक है, दैट्स व्हाई, राइट, इंडिया और फॉर दैट मैटर all the advanced democracies of the world are called as constitution democracy. But main काम constitution यही बता रहा है कि legislature को कैसे constitute किया जाएगा, number 1, ठीक है, and then powers, ठीक है, and its extent, legislature की powers क्या होंगी, ठीक है, और उनका extent क्या होगा, right. Same question is answered by the constitution with regard to other 2 institutions of the state or organs of the state, ठीक है, that is एग्जीक्यूटिव की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कैसे एग्जीक्यूटिव बनेगा, ठीक है, राइट, एंड एग्जीक्यूटिव की पावर्स और उनका एक्सटेंट क्या होगा, एंड मीनिंग दैट इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, क्या ये आपस में कहीं जुड़े हुए हैं या बिल्कुल सेपरेट हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती है, अगर ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर्स, तो हम कहते हैं कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है, जैसे हमारे देश में, जैसे कनाडा में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है, मीनिंग दैट इन दोनों इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गन्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो तब हम कहते हैं, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्रिएट कर रहा है, जैसे यूएसए में, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन ही आंसर करता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 इंस्टीट्यूशन। जुडिशरी इज ऑलवेज केप्ट सेपरेट, जुडिशरी को कहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे, because the doctrine of independence of judiciary says that judiciary has nothing to do with these 2 institutions, so only checks and balances are ensured, okay, right. And similar question is answered with regard to judiciary कि उसको कैसे constitute किया जाएगा, ठीक है, क्या जजेस एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंटेड होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन फिक्स्ड क्वालिफिकेशंस, या इलेक्टेड होंगे पॉलिटिशियंस की तरह, ठीक है। इनफैक्ट इट्स वेरी स्ट्रेंज फैक्ट दैट इन यूएसए इन सम ऑफ द स्टेट्स, राइट, द जजेस आर इलेक्टेड, राइट। तो जुडिशरी के लिए भी यही क्वेश्चन जो हमने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस किया, वही क्वेश्चन जुडिशरी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन आंसर करता है। यही सबसे बड़ा, राइट, काम होता है किसी भी देश में संविधान का। At the same time, it does answer another fundamental question regarding the relationship of the people living in that state, country में, with, right, the state, लोगों का जो कि सिटीजन कहे जाते हैं, जो उस देश में लोग रह रहे हैं उनको सिटीजन कहेंगे, उनका स्टेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, स्पेशली पॉलिटिकल रिलेशनशिप, क्या लोगों को कुछ राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। दिस क्वेश्चन इज यूनिवर्सली आंसर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग दैट योर राइट कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बॉडी किए जाते हैं, उन्हीं राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री डज, इट लेज डाउन सर्टेन इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, इन द कैपेसिटी ऑफ देयर बीइंग सिटीजंस, राइट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको हम पॉपुलरली फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बी इट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बी इट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर दैट मैटर, यू नो, एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, सम राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत
कंक्रीट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, राइट, रिगार्डिंग द रिस्पेक्ट ऑफ दोज राइट्स, राइट, फ्रॉम on the part of other two institutions or for that matter from the government. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स लिखे जाते हैं, राइट. इसके अलावा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस कंट्री का वो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो संविधान लिखते हैं वो किन किन मैटर्स को जरूरी समझते हैं उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना, ठीक है. बट ये जो 4 बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि लेजिस्लेचर की पावर्स और उसके फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव की पावर्स और उसके फंक्शंस, एंड जुडिशरी की पावर्स और उसके फंक्शन, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. ये 4 क्वेश्चन तो फंडामेंटल हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन के और लिखे जाते हैं. बाकी हालात पे, एक्सीजेंसीज पे डिसाइड किया जाता है कि और कौन से मैटर्स जरूरी हैं जो कि संविधान में लिखने योग्य हैं, जिनको लिखा जाना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर अटमोस्ट इंडिपेंडेंस और फॉर दैट मैटर, ठीक है, सिक्योरिटी अगेंस्ट देयर इन्वेजन बाय अदर टू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. बट ये कंट्री टू कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो लिखते हैं संविधान, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 4 क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, ठीक है, और लिखता है, राइट. हमारे संविधान मेकर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स इसके अलावा भी संविधान में इम्बॉडी किए या इनकॉर्पोरेट किए, जैसे इलेक्शंस के प्रोविजंस हो गए, ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मशीनरी संविधान में लिखी सो दैट इट डज नॉट ऑपरेट अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था, राइट. यूपीएससी जो कि हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ सेंट्रल सर्विसेज की टॉप जो हमारे देश की जो सिविल सर्विसेज हैं, राइट, उसको रिक्रूटमेंट का काम करती है, उसको इंडिपेंडेंस और इंसुलेशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस फॉर दैट मैटर, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूपीएससी के सारे प्रोविजन, सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन तक के जो प्रोविजन है वो हमने संविधान में लिखे, ठीक है, राइट. Certain ordinary matters were also incorporated, keeping in view the exigencies of that time, like citizenship, जो कि बाकी संविधान में ये मैटर डिस्कस नहीं किया जाता, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, राइट. तो ये बट ये पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, ठीक है, राइट. हैविंग अंडरस्टूड दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्यों लिखा जाता है, अब आप अपने आप आंसर कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है, विज़-अ-वी द अदर लॉज ऑफ द कंट्री, अदर लॉज जो उस देश में लिखे जाते हैं, जो ऑपरेट होते हैं, राइट. इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस हमें यहीं से पता लग रही है कि जिस देश में संविधान होगा उस देश में कानून का राज होता है, रूल ऑफ लॉ. इनफैक्ट, ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ, very important concept, right, again very important concept that constitution rule of law को प्रमोट करता है, ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि it ensures supremacy of law over the men, ठीक है, that ऐसा देश यहां मैन का रूल नहीं चलता, जहां कानून का रूल चलता है, देख ले. एंड कानून कौन सा है हमारे देश में, जो सबसे बड़ा कानून है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. दिस इज द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ग्रैंड नाम भी कहा जाता है. Constitutional law is also called as grand dam, which means that being the fundamental law of the land, being the fundamental law of the country, basic law of the land, right? No law be made by the legislature or any policy declared by the executive can override the provisions, right, whether express or implied, okay, of the Constitution. I mean, Constitution is sacrosanct under all circumstances, sacrosanct, right, and inviolable.
ये दो चीजें आपने याद रखनी। Being the grand norm, constitution shall be sacrosanct. ठीक है, all institutions or branches of the government or the state for that matter are supposed to not only function within the boundaries of the constitution, but they must respect the letter of the law also. They must respect the provisions expressed or implied of the constitution. ठीक है, and that's why constitution is sacrosanct for every authority operating in the territory of India for that matter, ठीक है, or any other country. ठीक है, हर एक अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करना पड़ेगा या रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इनवॉलेबल मीन्स इट इज नॉट to be violated by any institution, howsoever powerful it may be, because constitution, it's like a god. Everyone has to respect constitution. That's why it is called as grand norm, because जितने भी कानून इस देश में बनेंगे, हमारे देश में, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं बन सकते। और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की स्टडी की इंपॉर्टेंस इमर्ज होती है, क्योंकि जो भी आप जुडिशरी में सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट अल्टीमेटली दे आर एंड दे मस्ट बी इन सिंक विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को वायलेट नहीं कर सकते। इफ दे डू, देन एनी प्रोविजन ऑफ सच ए लॉ, ठीक है, जो प्राइवेट लॉ है, इट इज सब्जेक्ट टू ए चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, which is the sole authority to decide कि एक law constitutional है या unconstitutional है। इसकी आप सैकड़ों एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। In the past couple of years we have witnessed many provisions of substantive laws, जो कि ordinary laws हैं, जो हम कह सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए, right, on the touchstone of the fundamental right, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ठीक है। और लैंडमार्क जजमेंट्स आपने सुनी भी होंगी, रादर पढ़ी भी होंगी, राइट। 377 सेक्शंस ऑफ आईपीसी वाज चैलेंज्ड इन नक्ते जोहर केस एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। सेक्शन 497, ठीक है, व्हिच यूज्ड टू पेनलाइज द द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, ठीक है, इट वाज आल्सो चैलेंज्ड एंड रादर इट वाज रेड डाउन बाय आवर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन जोसेफ शाइन केस, ठीक है। Then the sedition law, ठीक है, that is still a crime, ठीक है। I'm not talking about that particular moment कि अब ये जो आईपीसी और ये सीआरपीसी जो चेंज होंगे उसके बाद क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, बट मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ कि राइट, सेडिशन को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल की ग्राउंड पे चैलेंज किया गया, ऑल्दो दैट्स अ डिफरेंट मैटर कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया, बट ये कहा कि सेडिशन आप तभी लगा सकते हो, स्टेट को तभी लगा सकते हो, राइट, अगर किसी की स्पीच वायलेंस करवाती है और एक किस्म की एक किस्म की पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, की प्रॉब्लम या सिचुएशन क्रिएट करती है। इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, कहने का मतलब ये है कि बहुत से सेक्शंस, बहुत से कानून, ठीक है, चाहे वो स्मॉल पीस ऑफ लेजिस्लेशन हो, right from medical termination of pregnancy act, right, to what do you call as to other draconian laws जो हमारे पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ठीक है। अभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको दोबारा रिव्यू करने की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 जजेस की जो कोर्ट बेंच ने, राइट, उसको कॉन्स्टिट्यूशन माना था, इवन दो इट हैड सर्टेन ड्रैकोनियन प्रोविजंस, बट इट इज स्टिल बीइंग रिव्यूड अंडर कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब देयर आर सो मेनी लॉज जो हमारे देश में हैं, उन सभी लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टेस्ट किया जाता है सबसे पहले। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से इनकंसिस्टेंट पाए जाते हैं तो हमारी कोर्ट को पूरा राइट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करना, ठीक है। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू कोरिलेट हियर, बट ये कहने का मतलब मेरा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्यों ग्रैंड नाम माना जाता है, ठीक है। तो यहां से आप कहेंगे इट प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ। दूसरी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, दैट इट प्रमोट्स
क्या लिखते हैं? It promotes very important concept, constitutionalism. ठीक है? Now you have to make a very distinction between the two terms, that is constitution and constitutionalism. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक स्पिरिट का नाम है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यह है कि government cannot exercise, there is a necessity of the government, everyone agrees to that, but government cannot exercise arbitrary and unlimited powers. मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही सरकार की पावर को सर्कमस्क्राइब करना होता है. ठीक है? लिमिट करना होता है. इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में होता है वहां सरकारें आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती. ठीक है? वहां सरकारें अपनी मन मर्जी की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती. पावर सरकार की हमेशा लिमिटेड होती है किसी भी देश में जहां संविधान होता है, और संविधान की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस यही होती है कि इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट सेज दैट देयर मस्ट बी अ गवर्नमेंट, बिकॉज विदाउट गवर्नमेंट एन ordered and civilized rule in the society is not possible. But government has to be limited, because an unlimited government can be a threat to individual freedom and liberty. And this is why the constitution is written, that it curbs the powers of the government, and इसी limited government के concept को कहते हैं constitutionalism. ठीक है? And that's why constitution creates various mechanisms, right, in the body itself to circumscribe or limit the powers of the government. Say in the form of fundamental rights, the government के powers automatically कम होगी because it has to respect the fundamental rights, right? Judiciary is made independent by express provisions of the constitution, because it acts as the custodian of the constitution. The government की power अपने आप कम होगी, अपनी मर्जी एक्सरसाइज नहीं कर सकती सरकार, बिकॉज जुडिशरी बैठी है. ठीक है? जो स्ट्रक्चर है पूरा पॉलिटी का, उसको डिवाइड कर दिया, फ्रेगमेंट कर दी पावर्स दो जगह पे, जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, राइट? देन वी हैव many other provisions, जैसे हम जिसको हम कहते हैं फेडरलिज्म कहते हैं. देन वी हैव इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, देन वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट? ऐसे प्रोविजन जो संविधान में लिखे जाते हैं, उन सभी प्रोविजंस का पर्पस सरकार की पावर सर्कमस्क्राइब करना होता है, लिमिट करना होता है, और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रमोट करना होता है. ठीक है? हैविंग सेड दैट, अब हम ये जो ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की ले ली, अब हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस इन जुडिशरी, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Let me emphasize here again कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में, being the fundamental law of the land or grand term for that matter, इसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि इसका सी जो है हमेशा कैप्स में लिखा जाता है. ठीक है? एंड दैट्स व्हाई मैं इसको कैप्स में लिख रहा हूँ. ठीक है? राइट? सिक्योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन जुडिशरी, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ. ठीक है? तो पहला मैंने आपको बताया था कि पहली सिग्निफिकेंस जो हमने पहले बात की, जैसे मैंने आपको बहुत सी लैंडमार्क जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है उसका रेफरेंस दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे सब्सटेंटिव लॉज को इंटरप्रेट किया और ये देखा कि कहां-कहां उन लॉज के प्रोविजंस या पूरे लॉ एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या इनकंसिस्टेंट है, और उन्होंने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया. जैसे मैंने आपको अडल्ट्री के सेक्शन बताए, जैसे मैंने आपको कार्नल सेक्स सेक्शन 377, अननेचुरल सेक्स जो कि एक पेनल ऑफेंस था. ठीक है? अंटिल इट वाज स्ट्रक डाउन और रेड डाउन बाय आवर सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो उन्हीं के बाद तो कहने का मतलब कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को सीरियसली पढ़ते हो तो इट विल हेल्प यू, हेल्प्स इन
the understanding of other laws of the country. जो देश में दूसरे कानून हैं जो कि आप जुडिशरी के लिए पढ़ोगे, देयर आर सो मेनी लॉज, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ब्रॉड बेस्ड होगी, ठीक है, राइट। उन इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम दे देते हैं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 20 लिखा है, ठीक है, विच इज, अगर आप उसको पढ़ोगे, जो कि कॉर्नर स्टोन है दो इंपॉर्टेंट लॉज का हमारे देश में, जिसको हम कहते हैं सीआरपीसी, एक्यूज्ड के क्या राइट्स हैं, बिकॉज सीआरपीसी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के क्या राइट हैं एंड उसको पनिश करने से पहले क्या क्या सेफगार्ड्स मिलने चाहिए। ये सेफगार्ड्स हमारे संविधान में आर्टिकल 20 में लिखे हैं, उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट लिखा जाएगा या इंटरप्रेट किया जाएगा या अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो हेल्प्स इन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज ऑफ द कंट्री। नंबर 2, ठीक है, लैंडमार्क जो जजमेंट्स है जो कि बहुत जरूरी है जुडिशरी के एग्जाम के लिए, वो तब तक आपको लैंडमार्क जजमेंट समझ नहीं आएंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का पर्पस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना है, और जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड, बिकॉज इट इज बाइंडिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है, एज पर आर्टिकल 141, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट्स है जो कि राइट ऑलमोस्ट एवरी नाउ एंड देन आती रहती है, जैसे अभी रिसेंटली सेम सेक्स मैरिज की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई, जो कि उन्होंने कहा कि मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो वो जजमेंट जब आप पढ़ोगे, सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है, राइट, तो आपको आर्टिकल 21 के बारे में पता लगेगा कि कैसे कैसे उन्होंने कहा, राइट, वी हैव ए राइट टू मेक सिविल यूनियन बट नॉट राइट टू मैरी एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। और उस बेसिस पर उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की हैं वो तभी आपको समझ आएंगी जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का बेस पता होगा, बेसिक जो कंसेप्ट हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के या फॉर दैट मैटर, ठीक है, बाकी प्रोविजंस के, वो तभी आपको समझ आएंगे। नंबर 3, ठीक है, हमारा जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, जुडिशरी का पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे देश में established है, right from Supreme Court down to the High Court and then subordinate courts, meaning that there is a hierarchy of courts. ये सारा स्ट्रक्चर आपको तभी समझ आएगा, you must understand, otherwise, right, you won't be able to understand the judicial system of the country exactly, और जिसमें आप एंटर करने वाले हैं, जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के प्रोविजंस पता नहीं होंगे, ठीक है। जब तक आपको सुप्रीम की वर्किंग, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता होगी, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, कोलिजियम की क्या डिबेट है, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, राइट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कैसे अप्लाई होती हैं, सुप्रीम कोर्ट किन किन डिस्प्यूट्स में अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो तभी आपको पता लगेगा जब आप संविधान में सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस पढ़ोगे। सिमिलरली हाई कोर्ट, जब आप जज बनोगे तो आप एक हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट की क्या पावर्स है, हाई कोर्ट की क्या ज्यूरिस्डिक्शन है, और हाई कोर्ट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये भी आपको प्रोविजंस, राइट, संविधान से ही पता लगेंगे। एंड येट मोर इम्पोर्टेंटली द जुडिशरी टू विच यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज सबऑर्डिनेट जजेस, जिसको हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहते हैं, और इन अदर वर्ड्स आप उसको कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट, वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप संविधान के उन प्रोविजंस को पढ़ोगे, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 237, राइट, जो कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिवोटेड है, कैसे सबऑर्डिनेट जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, हु इज द रिक्रूटिंग एजेंसी, जैसे आपको पता होगा पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, यू आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर,
ठीक है, एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, राइट। ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल्स 233 टू 237 में लिखे गए हैं। तभी आपको पता लगेगा कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी का कैसे चयन होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड देन, ठीक है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, राइट, कुछ सबऑर्डिनेट क्यों कहते हैं, हाई कोर्ट की क्या पावर होती है, एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो कैसे 7 इयर्स की प्रैक्टिस का प्रोविजन 233 आर्टिकल में 234 में लिखा हुआ है, एंड ये सारे प्रोविजन भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, पता लगेगा। तो दिस इज द मेन रैशनल बिहाइंड टेकिंग अप दिस इंट्रोडक्टरी क्लास, कि पहले हम संविधान को समझ लें, ठीक है, और फिर संविधान को पढ़ना क्यों जरूरी है फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है, irrespective of the fact that it constitute a part in Punjab and Haryana and Himachal only in the prelims, but in most of the states, constitutional law has been major subject both at the prelims as well as the main stage. Okay, so with this, I must say that you should study constitutional law, because this will consolidate your foundation for understanding other species of law, because it is the fundamental law of the land, and knowledge of constitution is not only must for a judicial aspirant, but I should say it is must for every citizen of the country. At least being an aware citizen, you should know the values, right, of our constitution, which are embodied in the preamble, are enshrined in the preamble, and of course what are your rights and your duties towards the nation and towards the society. Meaning that कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का नॉलेज सिर्फ जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए जरूरी नहीं है, इट इज मस्ट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. ओनली देन वी कैन कंस्ट्रक्ट ए यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड नेशन, ठीक है, which is enshrined as a goal by our constitution, right, in the very opening page of the constitution, that is preamble. Okay. With this, I must say that you should be studying constitution with this keen sense of interest, so that it could become useful for your preparation, and you would also evolve as a useful citizen of this country. Thank you so much. Bye bye. Take care.